اور اس وقت مشاہد اللہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جس میں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، جن کا ایک انتہائی اہم ترین رول رہا ہے مسلم لیگ نون کی کامیابیوں میں، ان کو قائم مقام صدر جو ہے اس کو ان کی منظوری دے دی ہے، مجلس عاملہ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 6 مارچ کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا، جس میں باقاعدہ انتخاب کیا جائے گا، الیکشن کیا جائے گا اس عہدے کا، صدر کا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے صدر تھے، لیکن ایک جبر مسلسل جو ہے جو مسلم لیگ نون پہ جاری و ساری ہے، اور ہمیشہ نہ صرف اس دور میں بلکہ پچھلے ادوار میں بھی محمد نواز شریف اور اس کی پارٹی کو اس لیے نہ کردہ گناہوں کی سزا دی جاتی رہی، بلکہ ایسے کام کہ جو پاکستان کے عوام کے حق میں تھے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نواز شریف نے کیے۔ تمام تر لالچ کو ایک طرف رکھا۔ میرا حوالہ 1998 میں بم دھماکے، جو ساری دنیا ان پہ زور ڈال رہی تھی کہ وہ یہ دھماکے نہ کریں، پاکستان کے عوام کے ساتھ انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا اور انہوں نے دھماکے کیے، اور ان کو لالچ $5 ارب کی دی گئی، اس کو بھی انہوں نے اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا۔ اور لیکن اس دھماکوں کے نتیجے میں جو پاکستان کی امنگوں، پاکستان کے عوام کے امنگوں اور آرزوؤں کے عین مطابق تھے، اس کے نتیجے میں ان کی حکومت جو ہے وہ چلی گئی، ان کو ہائی جیکر بنایا گیا، ان پہ جعلی مقدمات، جو 27 سال قید ان کو دی گئی، اور یہ جو اب کیس چل رہے ہیں یہ ماضی میں ان کے اوپر چل چکے ہیں جو فاش ہوئے ہیں۔ تو ابھی بھی کوئی اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اس عدالت نے جو فیصلے کرنے شروع کیے ہیں اور وہ پے در پے کر رہے ہیں، وہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کس کے کہنے پہ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو مطلب وقت بتائے گا، اس کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن ہم چونکہ عدلیہ کا اور اداروں کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ہر فیصلے پہ عمل درآمد کیا، لیکن پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیے یہ فیصلے، اس لیے کہ کروڑوں لوگوں کو کس کے نمائندے کو بیک جنبش قلم ہٹانا، پھر اس کو پارٹی صدارت سے ہٹانا، یہ حق جو ہے یہ عدلیہ کا نہیں ہوتا، یہ حق جو ہے پاکستان کے عوام کا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے حقوق کو طلب کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے سویلین بالادستی کی، یہ سویلین بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کے خلاف یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ جمہوریت کے خلاف کارروائی ہے، یہ پاکستان کے خلاف کارروائی ہے، یہ عوام کی جو بالادستی ہے، سویلین بالادستی، اس کے خلاف کارروائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آفرین ہے پاکستان کے عوام کو کہ وہ یہ ساری باتیں سمجھ رہے ہیں، اور وہ نواز شریف کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے اس عدلیہ کو بحال کرایا تھا، اب عدل کو بھی بحال کرانے کی جو انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے، اب یہ اس وقت تک رکے گی نہیں جب تک مکمل طور پہ سویلین بالادستی نہیں ہو جاتی اور عوام کے منتخب نمائندوں کی توہین جو ہے اس کا تسلسل ختم نہیں ہو جاتا، ووٹ کی تقدیس اور ووٹ کی عزت جو ہے وہ بحال نہیں ہوتی، اس وقت یہ قافلہ رواں دواں رہے۔ یہ طے کہ جو 2016 میں بنی تھی، 2016 نواز شریف کو قائد بنانے کا چودھری نثار نہیں آئے، اہم ممبر تھے، کیا وجہ ناراضگی ہے؟ ان کو بلایا نہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ یہ پوچھنا۔ دیکھیں ان کو ضرور بلایا گیا ہوگا، ظاہر ہے وہ ممبر ہیں، اب وہ نہیں آئے تو یہ انہیں سے پوچھئے گا۔ اچھا، یہ نواز شریف کو قائد بنانے کا جو فیصلہ ہے، کیا یہ جواب در جواب ہے، اور کیا یہ عدلیہ کے ساتھ محاذ رائی کی طرف جائے گا؟ پہلے چودھری محاذ رائی جو ہے، دیکھیں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ نواز شریف کے یا مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، انہیں سینٹ کا الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا، ان کے وزیر اعظم کو ہٹا دیا جاتا ہے،
उनके सदर को हटा दिया जाता है, और जब हम ये पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है तो ये कहा जाता है कि हम महाजराई कर रहे हैं। महाजराई क्या वो लोग नहीं कर रहे जो ये सारे काम कर रहे हैं? अच्छा मुशाहिद साहब, नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद मुंतखब हुए हैं, तो क्या आपके आइन में इसकी प्रवैया मौजूद है? आपकी पार्टी देखिए, आइन की बात नहीं है, बात ये है कि देखें माजी में भी शहबाज शरीफ साहब कई साल सदर रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लेकिन क़यादत जो है वो नवाज शरीफ की है। शहबाज शरीफ आज भी कारकुन है नवाज शरीफ का, हम सब कारकुन हैं नवाज शरीफ के, और नवाज शरीफ की जो क़यादत है जो मर्जी कोई कर ले उसको पाकिस्तान के अवाम से दूर नहीं किया जा सकता, वो क़यादत हमेशा कायम रही। अच्छा मुशाहिद साहब, ये बताएगा कि जो सूरत-ए-हाल 2016 के अंदर मजलिस आमला एक बनी थी, जो पहले मौजूद थी, 2017 में फिर मजलिस आमला बनाई गई थी। मैं कहा कर रहा हूँ 2016 में मजलिस आमला बनी थी एक पहले, 2017 में उसकी तौसीक की गई थी दिसंबर 2017 के अंदर, उस वक्त नवाज शरीफ नाअहल थे। तो क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जितने फैसले किए थे वो सारे खत्म कर दिए गए? क्या आप समझते हैं कि आईनी पेचीदगियां हैं आपके मजलिस आमला में? आईनी पेचीदगियां तो फिर पैदा हो जाती है ना जब इस तरह के फैसले होते हैं, तो उन आईनी पेचीदगियों को देख के ही हम ये आगे बढ़ रहे हैं और फैसले कर रहे हैं। अच्छा मुशाहिद साहब, ये बताइएगा कि चौधरी निसार जो है वो मुस्तकिल तौर पे हर जगह नाराज है, हर जगह उनको कोई मनाया नहीं जा रहा, आज भी वो मौजूद नहीं थे। आप क्या समझते हैं, वो नून लीग के अंदर मौजूद है या वो छोड़ चुके हैं? वो बिल्कुल नून लीग के अंदर मौजूद है, उनका लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ है। बाकी अगर कोई इख्तलाफी बात करता है तो ये उसका हक है, और ये एक सेहत की अलामत है। जमहूरियत के लिए इस तरह का रवैया जो है वो हमेशा मुस्बत होता है और उसको मुस्बत लेना चाहिए। साहब ये बताइएगा कि कलसूम नवाज का नाम भी सामने आ रहा था, अब ये इसी तरह तो नहीं होगा कि पहले शहबाज शरीफ का नाम वज़ारत उज़्मा के लिए किया, अब 6 तारीख को इन्हीं को ही मुंतखब किया जाएगा या किसी और को कर दिया जाएगा? ये जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया अच्छा, ये शाहिदुल्लाह साहब इलेक्शन वक्त में होंगे या नहीं होंगे? इलेक्शन वक्त में होने चाहिए। इस मुल्क में अगर सिविलियन की इज्जत व आबरू होनी है तो इस मुल्क के अदारों को कायम रहना चाहिए, इस मुल्क की जमहूरियत को कायम रहना चाहिए, और इलेक्शन जो है वो किसी को हक नहीं है कि उसको आगे पीछे करे, किसी को हक नहीं है कि लोगों को टिकट ना लेने दे और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एक मखसूस प्रोग्राम के तहत यानी कि आउट कर दे PMLN को सेनेट के इलेक्शन से। ये एक टगवार है जो जारी है बड़े तवील अरसे से, और ये जारी रहेगी। इलेक्शन इंशाल्लाह नवाज का ये बयानिया था कि आमर को नहीं पूछा जा रहा, 8 मार्च से मुख्तस हुई है उसकी डेट और समात जो आर्टिकल 6 है उसके ऊपर, उस हवाले से आपके समझते हैं कि इस केस को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए या ये ट्रायल जो है किसी और तक तो नहीं जा सकता? किसी को भी नहीं पूछा जा रहा। बात यह है कि ये जो नवाज शरीफ के खिलाफ पिटिशनर थे प्रेसिडेंशियल, उसमें भी दीगर में भी सारे करप्ट लोग थे जिनकी अपनी ऑफशोर कंपनी है, जो हिसाब अपने पहने हुए कपड़ों का नहीं दे सकते कि ये लाए कहाँ से हैं, उसकी देना उनसे ट्रेल पूछे ना, उनसे कोई नहीं पूछता। आज इस मुल्क के अंदर आसिफ जरदारी जो है वो सादिक और अमीन है। इमरान खान जिसको कैलिफोर्निया की अदालत ने भी सादिक और अमीन करार दिया, इन्होंने भी सादिक और अमीन करार दे दिया है। नवाज शरीफ जो है जिसका इंतहाई मजबूत ताल्लुक़ है, जो एक हमदर्द इंसान है, जो एक रासिखुल अक़ीदा मुसलमान है, जो जला वतन भी होता है तो मदीने की तरफ होता है, मक्के की तरफ होता है, वो सादिक और अमीन नहीं है। जिसके दौर में 1 रुपए की करप्शन नहीं हुई, आज भी सिंध में जो करप्शन का हाल है या KPK में जो करप्शन का हाल है, उनके वजीर खुद कह रहे हैं कि ये करप्ट लोग हैं। तो भाई बात यह है कि वो सारे आज सादिक और अमीन है, फरिश्ते हैं। पूरे 21 करोड़ में से एक शख्स और उसका खानदान मिला है जिसका मोहम्मद नवाज शरीफ नाम है, जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। उसका कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको सजा इस बात की दी जा रही है कि CPAC क्यों किया, दहशतगर्दी क्यों ख़त्म की, बिजली के कारखाने क्यों बनाए, डैमों को एक्सटेंशन क्यों दी, ये वो सजा है। टारगेट किलिंग जिसने ख़त्म कराई, बलोचिस्तान और कराची में अमन बहाल के लिए इस बात की सज़ा दी जा रही है। तो ये सज़ा तो वो भी कबूल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम अब इन बातों को आपने कहा है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले हैं
वो जमहूरियत और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है दरअसल। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि डायरेक्टली रियासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साजिश कर रही है इस मुल्क के खिलाफ? मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साजिश कर रही है, मैंने तो ये कहा बल्कि कि हम अदारों के हक़ में हैं, इसलिए उनके हर फैसले पे अमल दरामद कर रहे हैं। आप घुमाएं ना मेरी बात को, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। साजिश लेकिन हमेशा से होती रही है। इस मुल्क में 4 दफ़ा मार्शल लॉ तो लगे हैं ना, उसके पीछे साजिश कौन करता है मुझे साहब? इधर क्या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी साजिश नहीं थी क्या? 3 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट का इख्तियार देना ये साजिश नहीं थी क्या? 11 साल तक ताले आज़मा जर्नलों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रखना साजिश नहीं थी? ये साजिश थी। आज हालात बदल गए हैं, आज अवाम हर बात समझ चुके हैं, आज मीडिया भी आज़ाद है, पहले नहीं था। तो लोगों को सब पता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अब हम जिस तरफ जा रहे हैं इसका इंशाल्लाह ये फैसला कुछ मरहले में हम दाखिल हो जाएंगे और ये फैसला होगा कि इस मुल्क में सिविलियन की हुकूमत होगी, सिविलियन की बालादस्ती होगी, जमहूरियत की इज्जत होगी, वोट की तखदीस होगी या नहीं होगी, इसका आप फैसला करना है। सर ये फरमा दें कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा और नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया, आप समझते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए? उनको सज़ा मिलनी क्यों नहीं चाहिए? इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, उसको सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ताहिरुल क़ादरी कनाडा से उठ के आके यहाँ पे ईंट से ईंट बजा देता है और आपने इस वक्त देखा मुशाहिदुल्लाह इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वोट की इज्जत और तकद्दुस की बहाली तक ये तहरीक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक वोट की हुर्मत बहाल नहीं होती काफिला रवा दवा है। अवाम सब बातों को समझ रहे हैं और नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ ने अदलिया को बहाल करवाया था, अब अदल को भी बहाल करवाएंगे। आने वाले जिंदा नहीं रहे, जिंदा जावेद, जिन पे ताजीरें लगी हैं वही जिंदा जावेद रहे। मरियम नवाज का क्या स्टेटस? मरियम नवाज का क्या? इसी के साथ एक सवाल, पंजाब की सीट खाली, पंजाब की सदारत बात ये है, पंजाब की सदारत बात ये है, एक ही मीटिंग में तो सारे काम नहीं होता ना भाई। आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन आता है, फिर अगला स्टेशन आता है, फिर अगला ट्रेन चल रही है और ट्रेन का ड्राइवर नवाज शरीफ है, फिक्र नहीं कर रहा। महफूज है ये कौम और इस कौम का मुस्तकबिल जब तक नवाज शरीफ के हाथ में ज़माम कार है वो इसी के साथ सवाल है कि नवाज शरीफ जो है वो पहले रेजिस्ट करते रहे शहबाज शरीफ की नॉमिनेशन को, उनको वज़ीर आज़म भी नहीं बनाया गया और फिर मरियम और कुलसूम दोनों के नाम उन्होंने कभी रेजिस्ट नहीं किया। अब ये शहबाज शरीफ उन्होंने ना रेजिस्ट किया है ना पहले ऐसा हुआ। पहले भी उनकी जो ख्वाहिश थी वो, अब मैं उसमें नहीं, वो हो सकता है जो फैसला हुआ है वो शहबाज शरीफ की मर्जी से हुआ। तो फैसले तब्दील होते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये जो लोगों की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई फ्रिक्शन है, ऐसी कभी भी नहीं है। बयानिया यही रहेगा या बदल जाएगा? बयानिया तो यही रहेगा। बयानिया पाकिस्तान के अवाम के हक में है। जो चीज़ अवाम के हक में है उसको तब्दील करने का मतलब अवाम दुश्मनी है। तो क्या ये जो ओहदा बनाया जा रहा है, ये ओहदा बनाया जा रहा है जुबानी कलामी? कौन सा ओहदा? जुबानी कलामी हुई ओहदा बनाया भाई जाएगा? बात यह है यार, दुनिया में बहुत सारे लीडर ऐसे रहे हैं अपनी पार्टियों के, कौमों के, जिनके पास कोई ओहदा नहीं था। मैं आप नाम लेना शुरू कर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। तो नवाज शरीफ अब बहुत बड़ा लीडर है, वो मुबर्रा है इन बातों से कि वो सदर है या नहीं है, वो सदर हो या ना हो, क़यादत उसी की है, लीडर उसी वही है, पाकिस्तान के अवाम का निजात दहिंदा वही है, उनका कायद वही है और वही रहेगा। और आपने अभी बराह रास्त मनाजिर देखे, मुशाहिदुल्लाह बात कर रहे थे मीडिया के नुमाइंदों से। उन्होंने बात करते हुए कहा कि आज मीडिया आज़ाद है, लोग बाशऊर हो गए हैं, हम बहुत जल्द फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो जाएंगे। मुशाहिदुल्लाह ने बात करते हुए ये भी कहा कि नवाज शरीफ को मुल्क में अमन व अमान बहाल करने की सज़ा दी जा रही है।